Welcome students. Today here we discuss about the topic that is network topology based on computer networks. A network topology is the arrangement of network including its nodes and connecting lines. In another way, a topology is the physical configuration of a network that determines how the network's computers are connected. And once again, network topology is the interconnected pattern of the network elements. And last point, that is in network topology may be physical mapping, hardware configuration, or logical mapping, the path that the data must take in order to travel around the network. इन चार पॉइंट्स में अगर देखें तो जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये है कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक अरेंजमेंट है, एक मैनर है, पैटर्न है जिसकी हेल्प से हम डिवाइसेस को फिजिकली या लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. मींस अगर हाउ वी कैन अरेंज द डिवाइस फिजिकली और लॉजिकली का मतलब ये हुआ कि हम कैसे अपनी डिवाइसेस का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, उनकी इफ़िशियंसी का ऑप्टिमम कैसे लेंगे, ये इस टोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करते हैं. Next slide, that is types of topologies. There are various types of topologies और इनमें से मेन जो हैं वो बस, स्टार, ट्री, मैस, रिंग एंड एक टाइप ऑफ हाइब्रिड भी है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का दो बेसिक टोपोलॉजी का मिक्सिंग है. Now, bus topology. Bus topology is a network type in which every computer and network device is connected to single cable. When it has exactly two endpoints, then it is called linear bus topologies. जैसा डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो जैसा डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि एक मेन केबल है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं और जो भी डिवाइसेस होंगी वो डायरेक्टली स्लॉट लाइन के थ्रू एक करस्पॉन्डिंग लाइन के थ्रू डायरेक्ट इस मेन केबल से जुड़ी हुई होंगी, जो कि हम फिगर में देख सकते हैं. अगर हम बात करें यहाँ पर एडवांटेजेस की, जो फिजिकल एडवांटेजेस हमें मिलते हैं या लॉजिकली एडवांटेजेस हम जो ले सकते हैं, दैट इज इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, केबल रिक्वायर्ड इज लीस्ट compared to other network topologies used in small networks. It is easy to understand, easy to explain joining two cables together. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कॉस्ट इफेक्टिव है, वो इसलिए कि यहाँ पर हम एक लिमिटेड दायरे में एक सिंगल केबल की हेल्प से स्लॉट लाइन यूज़ करते हुए इस टोपोलॉजी को डिज़ाइन कर सकते हैं. कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी हैं इस टोपोलॉजी के, दैट इज केबल फेल्स देन होल नेटवर्क फेल्स. इट मीन्स मेन केबल में अगर दिक्कत है तो पूरे नेटवर्क पर इसका असर पड़ेगा. इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी और नोड्स आर मोर, द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क decreases. Cable has a limited length and it is slower than the ring and another topologies. Ring topology. It is called ring topology because it forms a ring as each computer is connected to another computer, with the last one connected to the first exactly two neighbor for each other. It means जो भी डिवाइस है वो अपनी जस्ट एडिसेंट लेफ्ट एंड राइट डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है. डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन की बात कही जा सकती है. Now, advantages and disadvantages of ring topologies. First one, transmitting network is not affected by high traffic or by adding more nodes, as only the nodes having token can transmit data. And second one, cheap to install and expand. इसके अलावा ये काफ़ी cost effective रेंज में नहीं आएगी. And disadvantages, disadvantages की अगर बात करें, that is trouble shooting is difficult in ring topology and adding or deleting the computers distributes the network activity
and the last one, that is failure of one computer disturbs the whole network. चूँकि यहाँ एडिसेंट डिवाइसेस से जुड़ी हुई हैं सारी डिवाइसेस, तो एक के फेल होने पर असर नेटवर्क पर पड़ेगा, स्लोअर होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम टोकन कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, ठीक है। और बस ये है कि एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर्स डिस्टर्ब कर सकता है अनदर एक्टिविटीज़ के लिए। Now star topology. In this type of topology, all the computers are connected to a single hub through a cable. This hub is the central node and all others nodes are connected to the center node. मीन्स यहाँ पर एक ऐसी हम डिवाइस इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ नोड नोन एज हब। इससे सारी की सारी डिवाइसेस डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होंगी। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, दैट इज़ फास्ट परफॉर्मेंस with few nodes and low network traffic. Hub can be upgraded easily, easy to troubleshoot, easy to set up and modify. Only that node is affected which has failed. Rest of the nodes can work smoothly. Now इसके अगर हम कुछ बातें देखते हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसके बाद ईजी टू ट्रबल शूट है, मीन्स अगर एक लाइन में फॉल्ट है तो हम आसानी से इसको कैच कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक फॉल्ट होने से पूरे नेटवर्क पर इसका असर नहीं पड़ेगा, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेटवर्क विल बी कंटिन्यू एज इट इज़। Now, disadvantage, cost of installation is high, expensive to use. If the hub fails, then the whole network is stopped because all the nodes depend on the hub. Performance is based on the hub, that is, it depends on its capacity. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, एक तो एक एक्सपेंसिव है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पाते एक लंबे नेटवर्क के लिए। और दूसरी ये कि परफॉर्मेंस जो है बेस करेगी हब पर। एक्चुअली हब के कुछ पॉइंट्स हैं, आपके जो भी यहाँ पर हमें पोर्ट मिल रहे हैं हम उतनी ही डिवाइसेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। Now the mass, it is a point-to-point connection to other nodes or devices. All the network nodes are connected to each other. Mass has two physical channels to that is n minus 1 by 2 physical channels and n devices. There are two techniques to transmit data, that is routing and floating. In routing, the nodes have a routing logic as per the network requirements, like routing logic to direct the data to reach the destination using the shortest distance. अगर हम बात करें मैथ टोपोलॉजी की कुछ खास पॉइंट्स की, एक वो कि यहाँ पर जो कहना चाहिए लिंक नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर n है तो यहाँ पर n माइनस 1/2 फिजिकल चैनल्स अवेलेबल होने चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर n-1 पोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। Now next point is floating here, that is in floating the same data is transmitted to all the network nodes has to routing logic is required. The network is robust and it's very unlikely to lose the data, but it leads to unwanted load over the network. यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक कनेक्शन अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम पूरे नेटवर्क को ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये बंद है। हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ पाथ को यूज़ करके हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Now we discuss about the advantages. Each connection can carry its own data load. It is robust. Fault is diagnosed easily. Provides security and privacy. एडवांटेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा एडवांटेज मिलता है कि सारा का सारा ट्रैफिक ऑन है, मीन्स पाथ ऑन है, ट्रैफिक इसलिए ऑन होगा ही होगा। और रोबस्ट इसलिए कह सकते हैं कि एक कनेक्शन लूज होने से या डिस्टर्ब होने से ओवरऑल ट्रैफिक
पर इसका ओवरऑल नेटवर्क पर इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, रीज़न इसके पीछे यही रहेगा कि हम ओन पाथ यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, दैट इज इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट, केबलिंग कॉस्ट इज मोर, बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। अभी हमने बात की थी कि दैट इज n-1 पोर्ट की आवश्यकता होगी और दूसरा n-1/2 फिजिकल चैनल्स चाहिए एंड डिवाइसेस के लिए। तो ये कॉस्टली फैक्ट है इसका जो डिसएडवांटेज को दिखाता है। Our tree topology, it is a root node and all other nodes are connected to a forming a hierarchy. It is also hierarchical topology. It should at least have 3 levels to the hierarchy. ये ट्री टोपोलॉजी जो है हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास जो स्टार टोपोलॉजी है उसका एक वेरिएशन है, मीन्स उसका एक लॉन्ग रूप है। वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर दो एक मेन डिसएडवांटेज आ रहा था, कैपेसिटी हब पर डिपेंड कर रही थी। बट यहाँ पर क्या है, हमने उसी चीज़ को का फ़ायदा उठाते हुए हमने हब को इंक्रीज़ कर लिया और यहाँ पर हमने दो कैटेगरीज हब में डिवाइड की, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो होगा वो कंट्रोल करेगा पूरे नेटवर्क और सेकेंडरी से रिमेनिंग छोटी छोटी स्मॉल कह सकते हैं हम कि जो स्टार टोपोलॉजीज होंगी वो कनेक्टेड होंगी और कंट्रोल बाय मेन प्राइमरी हब जो नेटवर्क कंट्रोल करेगा। अगर मोटे तौर पे देखें यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में, तो जो भी हमने यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड ईजी। वही जो कि हमने बढ़ा लिए हैं कैपेसिटी अपने नोड्स की ड्यू टू increasing the number of hubs, easily managed and maintained, error detection is easily done। डिसएडवांटेज की बात करें तो हैवी केबल्स की रिक्वायरमेंट है, कॉस्टली है, इफ़ मोर नोड्स आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफ़िकल्ट होती है एंड सेंट्रल हब फेल्स, मीन्स वही प्राइमरी हब फेल होता है तो नेटवर्क पर इसका पूरा असर दिखाई देगा। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी जैसा पहले भी डिस्कस किया था, इट इज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, कुछ नया खास नहीं है इसमें, विच इज़ मिक्सर ऑफ टू और मोर मेन टोपोलॉजीज। फॉर एग्जांपल इफ एन हैव अ ऑफ we have a ring topology is used in one office and we also increase the network and we want to join here like tree topology or star topology, then we can join with the help of this hybrid topology. And now the advantages, reliable as error detecting and troubleshooting is easy, that is effective, scalable as size can be increased easily, flexible, and disadvantages complex in design and costly. Thank you.